In SQL, we have sysdate, which is a function of date, and through sysdate, we can access both date as well as time information. So this is very important point to note that sysdate is not only capable to provide date information, it can also provide information about the time. So we will discuss how we can access time information by using sysdate. Then another important point to note that whenever we have a date data type and we want to store information about a date, we always has to follow this format. This is the default format of Oracle to supply the value of date, and this is DDMONYYY. For example, if you want to supply the date as 12th December 1980, so it should be written in this format. First two for day, three alphabets for month information, and then 4 digits for year, and it should be in single quotes. Let's suppose I'm creating a table student with roll number and date of birth. Date of birth will be of date type. So in order to supply this date of birth information, we have to write date of birth in single quotes, and it should be written in this format. And this is the by default format which Oracle understand, and through by using this format, we can simply input the information of date. Then another important point when we work with date data type is to understand that we can add or subtract a number to or from a date, and it will result in another date value. इसका मतलब ये हुआ कि आप डेट में कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं और कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि डेट में कुछ ऐड भी किया जा सकता है और कुछ सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है. और एक और पॉइंट बोल रहा है कि आप दो डेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करके हमें टोटल नंबर ऑफ डेज जो है बीच में वो मिल जाते हैं. अब ये सारी चीजें करने के लिए हम प्रैक्टिकली इसको डिस्कस करते हैं. सो ये मेरे पास लाइव सीक्वल है जिसमें हमारे पास एक सेशन शुरू करते हैं और उसके ऊपर हम ये क्वेरीज रन करते हैं. So I hope that all of you are familiar with the Oracle Live SQL. So you can use this Live SQL to write the queries. Here I will use SQL worksheet. This is my working area where I can write any queries. So let us first create the table which we have just discussed, that we want to create a student table. So let us create that. So syntax is create student, roll number, number type, and date of birth has a date type. By executing this, टेबल सर इसमें साइज मेंशन नहीं. yes, this number size is optional. ये by default size pick कर लेगा. So here we have created a table student with roll number and date of birth, and let's insert a record in this. So here I am inserting a record with this value. Now I only want to execute this insert statement. So insert into table name values. So it is important to highlight this particular statement, otherwise upper statement will also execute and it will give an error message. So in order to execute only statement number 2, you need to select that particular statement and then press the button run. So here I have inserted a one row into this. And in order to see its content, you know that I have to use select star from table name. So you can execute this statement to see its content. So this is the detail which we have listed. Now let us do some interesting stuff over this. So I'm going to use select
sysdate from dual. So dual is a internal dummy table where we can write such kind of query. So here sysdate is an internally defined column in Oracle, and we can always query this, the value of this column, to display the information. So here it gives me information about 9th March 21. This is the current system date. And we have just learned that we can add and subtract something from this. So if I write select sysdate plus 1 from this, so what will be the output? Can you have any guess what will be the output if I simply write sysdate plus 1 from this? क्या मिलना चाहिए? 10 March. So this, then one day will be added into this. Sorry, we have to select this statement, then only I have to run it. So this is 10 March. It means that yes, you can add in integer into this particular date. What is dual? Dual is an internal dummy table where we can because the syntax is select column name from table name. Now this sysdate is a column which is given by Oracle, but this in order to access this column, you always need a value of a table. So that's why Oracle created dummy table named as dual to handle such kind of query. For example, you want the result of 2 plus 2. But in order to get this result, again, you require some table. So there is no need to create a table just to get the result for 2 plus 2. So you can again use dual table for such kind of purpose, and you can see that 2 plus 2 is 4. So you can write any mathematical expression here and you can see the result. So this is a dummy table which I am using. Similarly, sysdate is a keyword or a column. In order to access its value, again, I am using dummy table here. So this is a dummy table which I am using. So the question is why the time is not displayed. Yes, we will take that question just now. Okay, now try to look for this. Select star from student. So this is the content of this. Now the query is, I want to see the date, age of roll number 1. Is it possible to check the age of roll number 1? अब मुझे इसकी एज चाहिए कि ये कितने साल का है, और अगर मुझे इसकी एज माइनस DOB, तो मुझे क्या करना चाहिए? sysdate माइनस DOB कर लेना चाहिए, जिससे मुझे पता चल जाना चाहिए कि इसकी एज कितनी है. तो लेट्स डू दिस. इसको रन करता हूं तो ये नंबर आया. अब क्या समझ लग रहा है ये क्या है? Number of days. नंबर ऑफ डेज. और ये भी अब देखना, दिस इज वेरी इंटेलिजेंट. अब मैं दोबारा रन प्रेस करता हूं तो ये पॉइंट्स की वैल्यू चेक करना, ये वैल्यू चेंज हो गई. तो अब ये वैल्यू कुछ और हुई. अब फिर दोबारा, हाँ, तो ये प्रिसीजन जो है वो अप टू सेकंड्स तक है. तो ये आपको नंबर ऑफ डेज बता रहा है, और ये बता रहा है कि ये डे 65% बीत चुका है, और ये सेकंड्स की इंफॉर्मेशन है. सो एवरी टाइम व्हेन एवर आई एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, I will always get some different value because it giving me precision up to second value. तो अब मुझे अगर उसकी एज ईयर्स में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो नंबर्स में हो गए, तो ये तो हम यूज करते नहीं है. तो कितने साल का हो गया ये कैसे पता चलेगा? डिवाइड बाय 365. Yes, तो let's do that. So it is possible to do this. मैं इसको ये कर रहा हूँ, फिर डिवाइड कर लेता हूँ 365 और इसको एग्जीक्यूट कर. Sir, here you inserted once insert into STU values, but when you executed a select star from STU, there were two in rows which came. No, actually I inserted it 2 times. That's why this record is inserted 2 times. मैंने दोबारा भी इसको एग्जीक्यूट किया था. तो जितनी बार इंसर्ट प्रेस करेंगे या एग्जीक्यूट होगी ये कमांड, उतनी बार आएगा. क्योंकि जब भी आप बिना एग्जीक्यूट, अगर मैं यहाँ से सिंपल रन प्रेस कर लेता हूँ गलती से, तो ये सारी की सारी कमांड्स दोबारा एग्जीक्यूट होती हैं. तो फिर ये इंसर्ट दोबारा एग्जीक्यूट हो गई. तो अभी मैंने एक बार और किया था तो ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं अब, क्योंकि
अब दोबारा करता हूं तो फिर ये इंसर्ट भी एग्जीक्यूट होगी। अब आपको 4 रिकॉर्ड मिलेंगे। So every time all the statements which are written in this window are executed. So this is important point to note. So that's why it is desirable to remove previous commands. Otherwise, you will get into the problems. So let's remove this and execute only this. तो ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। अब 4 रिकॉर्ड 5 रिकॉर्ड 4 रिकॉर्ड है मेरे पास, 4 बार इंसर्ट हो चुका था। और सिलेक्ट सिस डेट माइनस DOB 365, तो ये 40.267 यानी 40 साल और 26 उसके फर्दर ईयर्स का ऑप्शन आ गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे इस कॉलम की जो आउटपुट आ रही है, इसकी जो हेडिंग है वो आप देखते हैं सिस डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय 365 है। This heading does not carry any important information. So I want this heading as a age. मैं यहाँ पे heading age चाहता हूँ. Is it possible to have a heading age here instead of this formula? As age after divide by 365. So yes, it is possible to do this. You can simply write age. This age is actually act as a alias. So I am giving alias to a column this. So if you run it, so if you run this, select this as age from this, so you can see you will able to get this column as age. So this is important learning that yes, 2 dates can be subtracted, and by subtracting 2 days, we can get number of days in between that. Now there was one question from you people that if I write this query, select sys date from dual and execute this, it only showed me information about date, but it has not shown me anything about information about the time. तो मुझे टाइम के बारे में इसने कुछ नहीं बताया कि सिस्टम का टाइम क्या था। लेकिन अभी हमने पढ़ा था शुरू में कि सिस डेट से डेट और टाइम दोनों पता चलते हैं, लेकिन अभी जो हमने सिस डेट यूज किया उसमें तो सिर्फ डेट आया, टाइम तो मिला नहीं। तो अब टाइम की इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, उसके लिए हमें ये हमने कर लिया। तो अब सिस्टम डेट में से टाइम की इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, उसके लिए हमें कुछ कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी। तो एक्चुअली क्या है कि जो हम टाइम डिस्प्ले करेंगे वो एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल यू डिस्प्लेइंग दैट के 9 PM टाइम है, तो 9 PM इज एक्चुअली इज कैरेक्टर एंड यू वांट टू डिस्प्ले दिस डेट एज ए कैरेक्टर। तो उस केस में मुझे इस डेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिस्प्ले टाइम इंफॉर्मेशन। So in order to display time information, I have to use explicit data type conversions. And you see that conversion for this, we have some explicit functions, and one such function is toChar, which is used to convert date to character. And we also have one function which is used to convert character to date. तो आज मैं अभी आपको इन दो functions का use बताऊंगा। toDate और toChar का यूज क्या है, जो कि डेट को कैरेक्टर में और कैरेक्टर को डेट में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये सिंटेक्स है। ये कहता है कि to_char फिर डेट और उसके बाद आप कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं इस फंक्शन को यूज करके ही बताता हूं, डायरेक्टली विंडो पे चलते हैं। तो अगर मुझे टाइम की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो हमें लिखना पड़ेगा select to_char, क्योंकि मैं डेट को टाइम में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो जो ये कॉलम है ये डेट है। अब मुझे यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं इसको किस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। सो हियर आई एम कन्वर्टिंग दिस डेट टू ए स्ट्रिंग। तो आप कह सकते हो कि मुझे भाई ये डेट चाहिए, फिर उसके बाद ये मंथ चाहिए, फिर उसके बाद ये ईयर चाहिए। तो ये कीवर्ड है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं डेट को किसी भी फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकता हूँ। आगे बाय डिफॉल्ट डेट डिस्प्ले हो रही थी 09-March-21, हाइफन से सेपरेटेड था। तो मैं हाइफन की बजाय फॉरवर्ड स्लैश स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि भाई DD
फिर एमएम के क्या आउटपुट आएगी वो भी चेक करेंगे, और फिर 4 अल्फाबेट्स ऑफ ईयर। अभी सिर्फ 2 दे रहा था तो मैं उसको बोल रहा नहीं, मुझे पूरे 4 डिजिट चाहिए, और इसके साथ स्पेस, फिर आवर्स 24 फॉर्मेट में, देन एमआई फॉर मिनट्स, एसएस फॉर सेकेंड्स. So these are the keywords. So DD for day, MM for month, this for year information, HH for hour format. Here I am specifying 24 format. MI is for minutes, SS is for seconds, and these are just separators. So you can use any separator. You can use colon or you can use forward slash. So here I am using this. And then from table name. ऐसे चलेगा तो क्या फायदा? So yes, my table name is this. So let's execute this. So here you can see the output. So this is quite interesting output. You can see now. तो मुझे डेट की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 9 मार्च 21 है, और जो टाइम है वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है. कैलिफोर्निया में रहते हैं इसलिए 9 बजे लगाई है, आज पता चल. जो है ये So yes, so here we have this as a date information, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइम की इंफॉर्मेशन है, और यहाँ टाइम जो है वो आप देख सकते हैं कि 24 फॉर्मेट में अवेलेबल है, और इसके साथ हमारे पास मिनट्स और सेकंड्स की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है. So, can we go any further than seconds? No. This is the last. Seconds का further मतलब क्या हुआ वैसे? So like Last is up to seconds. तो ये हमारे पास हुआ, और यहाँ mm का मतलब आप समझ पा रहे हो कि mm मुझे मंथ का नंबर उसका दे रहा है, it is 03. लेकिन if you write MON, so this will display March. So another important point, if you write MON, you will get MAR. This is also important to note that कि अगर मैं MON लोअर में लिखूंगा तो मुझे आउटपुट में मंथ भी जो है वो लोअर केस में मिलेगा, और अगर यहाँ पे आप MON अपर केस में लिखेंगे तो जो आपको आउटपुट भी मिलने वाली है वो MAR जो है वो अपर केस में मिलेगा. So this case is also important. So if you write M in upper, all in lower, so this again मार्च में जो M है ये अपर में आ जाएगा और बाकी जो है वो लोअर में आएगा. और अगर आप फुल मंथ चाहते हैं, यू कैन राइट हियर मंथ आल्सो. सो ये उसको इस तरह से दिखाएगा. तो ये मार्च फुल जो है वो दिखाएगा. इसमें बीच में स्पेस था तो इसलिए जो मंथ है उसमें स्पेस पैडेड है, तो इसलिए ये स्पेस के साथ इंफॉर्मेशन दिखा रहा है. सो वी लर्न दैट यस, इट इज पॉसिबल टू डिस्प्ले टाइम इंफॉर्मेशन थ्रू यूज ऑफ sysdate. अब कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं, और मैं आपसे फिर क्वेरी पूछूंगा और मुझे उसका आंसर करना. सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम STU. सो ये हमने रिकॉर्ड है मेरे पास, और इसमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर की थी. अगर मुझे इसके रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो क्या स्टेटमेंट है? डिलीट टेबल. और अगर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो है इंसर्ट इनटू टेबल values 1. तो मैं अब क्या कर रहा हूं, ये पिछले जितने भी रिकॉर्ड है उनको डिलीट कर रहा हूं, सो दैट कि एक ही रिकॉर्ड है. 4 रोज डिलीटेड, एक इंसर्ट कर रहा हूं. अब देखिए यहाँ पे जब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं स्टूडेंट का, तो क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं? सिर्फ डेट स्पेसिफाई कर रहा हूं, टाइम स्पेसिफाई नहीं किया. डेट ऑफ बर्थ जो थी, जिस तरह से sysdate डेट और टाइम दोनों स्टोर करती है, उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ के पास भी कैपेबिलिटी है कि वो डेट और टाइम दोनों स्टोर कर सके और प्रोसेस कर सके. लेकिन मैंने यहाँ पे क्या सिर्फ स्टोर किया है?
डेट स्टोर की है, तो क्वेश्चन आता है कि भाई इसका टाइम कहाँ से आएगा, और अगर टाइम आएगा तो कितना आएगा। तो मैं अगर इस स्टूडेंट का टाइम ऑफ बर्थ चेक करना चाहूँ, अगर आप ये लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट, सो यू विल गेट आउटपुट लाइक दिस 12 दिसंबर। लेकिन अगर मुझे इसका टाइम चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? टाइम ऑफ बर्थ भी देखना है साथ में, इस स्टूडेंट का टाइम ऑफ सर बर्थ। इसमें सेलेक्ट टू कैर DOB वाला ऊपर वाला सेम फॉर्म। वेरी गुड। तो अगेन मुझे टू कैर फंक्शन यूज करना होगा, और DOB के साथ मुझे यहाँ उसका ये ईयर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ मुझे टाइम की इंफॉर्मेशन भी स्पेसिफाई करनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ जो टाइम डिस्प्ले होने वाला है वो क्या होगा? तो आपको क्या लगता है कितना टाइम डिस्प्ले होगा इसका? तो 12 0 0 0 सर 000 या सिस्टम टाइम जब मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था? 0 0 0 0 0। 0 चलो, 0 0 सर। सो यस यू आर करेक्ट। तो 000 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डेट स्पेसिफाई करते हैं तो उस दिन का स्टार्टिंग जब 00 से शुरू होता है तो उसको वो ले लेता है, और उसकी बेसिस के ऊपर वो उसको स्टोर करता है। यू आर गुड। अब मेरा अगला एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने पहले यहाँ एक कमांड रन की थी सर, डिलीट एसटीओ सर। सर उस कमांड से मतलब केवल जो कमांड में जो हमने टेबल में जो वैल्यूज इंसर्ट की थी वो डिलीट होती है, या सर मतलब पूरा टेबल नहीं डिलीट होता उससे, जितने भी डेटा टाइप्स वगैरह जो भी स्टोर किए थे? नहीं, वो रिकॉर्ड सारे डिलीट हो गए, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर रहती है। टेबल की जो स्ट्रक्चर है, कॉलम्स है, वो रहते हैं, लेकिन उसके अंदर मेरे 4 रिकॉर्ड थे वो चले गए थे। तो अर्लियर आई है 4 रिकॉर्ड्स, वो डिलीट हुए, उसके बाद एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, तो अब नया एक रिकॉर्ड बचा हुआ है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड सारे रिमूव हो चुके हैं। तो मतलब सर जो रिकॉर्ड डेटा टाइप है, जैसे स्टूडेंट का नाम किस फॉर्म में हाँ, स्टोर होगा, कैरेक्टर किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो डिस्क्रिप्शन मतलब सेव रहेगी? हाँ, वो स्ट्रक्चर होती है और वो सेव रहती है। स्ट्रक्चर को ड्रॉप करने के लिए फिर ड्रॉप टेबल कमांड है, तो वी हैव अ डिफरेंट कमांड टू ड्रॉप इट। ओके, मैं उससे सर पूरा इरेज हो जाता है। हाँ जी, उससे स्ट्रक्चर भी चली जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ इम्पोर्टेंट एक बात डिस्कस कर रहा था कि लेट्स सपोज ये जो स्टूडेंट रोल नंबर 1 है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1980। अब आप क्या चाहते हो कि भाई ये जब बच्चे का डेटा स्टोर करें तब आप इसका टाइम ऑफ बर्थ भी स्टोर करो, कि भाई आप स्टोर करो कि भाई ये बच्चा जो था ये सुबह 6 बजे हुआ था। तो अब आप ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी चाहते हैं। अब बताइए ये कैसे स्टोर होगी? क्या स्टोर हो सकती है? डेट ऑफ बर्थ में कैपेबिलिटी है डेट स्टोर करने की या नहीं है? सर तो डेट ऑफ बर्थ में कैपेबिलिटी तो है स्टोर करने की। सो अब अगर मैं ये कमांड इंसर्ट करने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है देखते हैं। तो ये कह रहा है कि डेट फॉर्मेट पिक्चर एंड बिफोर दिस मतलब एरर आ गया, ओरेकल को समझ नहीं लगा कि ये क्या है। तो ओरेकल जो है वो डेट ऑफ बर्थ का जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट समझता है वो ये है DD MON YYY। तो बाय डिफॉल्ट ओरेकल समझता है कि भाई ऐसा कुछ मिलेगा तो वो डेट है। इसके अलावा कुछ और भी अगर आप दे देते हैं तो ओरेकल कंफ्यूज हो जाता है और वो समझ नहीं पाता डेट, और उसके लिए एवरीथिंग एल्स इज ए स्ट्रिंग। तो ओरेकल के लिए ये बाकी जो भी कुछ है, क्योंकि है तो सिंगल कोट्स में, तो ओरेकल इसको क्या मान लेता है? स्ट्रिंग मान लेता है। तो ओरेकल के लिए सिर्फ इतना फॉर्मेट जो है ये डेट ऑफ बर्थ है या डेट है। इसके अलावा जब भी आप कुछ और इसमें ऐड कर देंगे तो वो उसके लिए स्ट्रिंग बन जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ जब आप ये लिख रहे हैं तो ओरेकल इसको डेट मान रहा है या स्ट्रिंग मान रहा है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग। सर। तो मुझे अब इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना चाहिए? नंबर में, नंबर में या डेट में? डेट डेट में सर। डेट। तो स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन होना चाहिए? जैसे टू कैर था तो वैसे ही अब यहाँ क्या होना चाहिए? टू डेट। वेरी गुड। तो आई हैव टू यूज टू डेट जो इसको डेट में कन्वर्ट करेगा। तो अब मैं यहाँ स्ट्रिंग दे देता हूं कि भाई इस स्ट्रिंग को आप डेट में कन्वर्ट करो। तो अब
मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज है। तो मैं अब ओरेकल को बताऊंगा कि जो पहली चीज मिल रही है वो डी है, फिर आपको एक हाइफन मिलेगा, फिर मंथ मिलेगा 3, फिर 4 आपको वाई मिलेंगे, फिर स्पेस मिलेगा, फिर एच मिलेगा, लेट्स सपोज 24 फॉर्मेट में मिलेगा, और उसके बाद आपको मिनट्स मिलेंगे, सेकंड्स में दे नहीं रहा, और उसके बाद आपका कोट्स खत्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ कि भाई ये जो स्ट्रिंग है इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो ओरेकल को मैं बता रहा हूँ कि भाई ये 12 को तुम डे मानो, DEC को तुम मंथ के 3 अल्फाबेट्स मानो, 1980 को तुम ईयर के 4 वाई मानो, ये H6 को तुम R24 फॉर्मेट में समझो, और ये 0 जो है ये मिनट्स की इंफॉर्मेशन है, कॉलन हाइफन से आ रहा है और कॉलन से मैच हो रहा है। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट दिस, इसको रोल नंबर 2 कर देते हैं और ये बना देते हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट दिस। सर ब्रैकेट्स कंप्लीट नहीं है, उससे कोई इश्यू तो नहीं? एरर आ गया तभी तो। So let's execute it. Yes, 1 row inserted. तो अब हमने रोल नंबर 2 का जब डेटा स्टोर किया था तो उसके साथ हमने सुबह 6 बजे का उसका टाइम ऑफ बर्थ था वो भी स्टोर किया है, जबकि जो रोल नंबर 1 था उसके लिए हमने कोई भी टाइम ऑफ बर्थ स्पेसिफाई नहीं किया था। अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम STU। अब मुझे बताइए रोल नंबर 2 के लिए वो क्या डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम बताएगा या नहीं बताएगा? बताएगा सर। नहीं बताएगा। नो सर। नहीं बताएगा सर नहीं बताएगा सर। नहीं बताएगा। तो हमें लग गया, तो उसने तो डेट ऑफ बर्थ है तो उसको तो डेट ऑफ बर्थ का मतलब डेट सही है। अब टाइम अगर मुझे इसमें से एक्सट्रैक्ट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। क्या यूज करो बोलो? टू कैर। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। तो टू कैर। अब बताओ क्या करूं यहाँ पे? फॉर्मेट लिखना। फॉर्मेट। तो पहले अब कोई और, अब हम पहले मंथ कर देते हैं, फिर डे कर देते हैं, फिर ईयर कर देते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस टाइम। HH मिनट्स सेकंड्स दिस फ्रॉम दिस, और अब इसको रन करते हैं। तो अब पहले का रोल नंबर का आया 0 और दूसरे का आया 6 बजे। सो दिस इज द केस, और आप देख सकते हैं कि उसी फॉर्मेट में हमारे पास इंफॉर्मेशन आई जिस वजह से हमने इसको स्टोर किया था। तो यस, रोल नंबर 1 के लिए हमने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया था तो रात के 12 बजे आएंगे, और अगर हमने खुद का टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है तो वो जो अब का टाइम है वो डिस्प्ले करेगा जो हमने इनपुट किया था। सो नेट फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपको टाइम की वैल्यू इंसर्ट करनी है डेट वाले कॉलम में तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा इंसर्ट करते समय? बोलिए। इंसर्ट करते समय टू डेट हमें टू डेट यूज करना है, क्योंकि जब आप स्पेसिफाई करोगे तो वो स्ट्रिंग बनता है। सो ये एक तरह का स्ट्रिंग होता है, तो आपको यहाँ पे उसका फॉर्मेट बताना पड़ता है। लेकिन अगर टाइम की वैल्यू आपको रिट्रीव करनी है या सिलेक्ट करनी है तो उस समय फंक्शन यूज कौन सा होगा? toCat. So this is the point which should always keep in mind कि toCar आपको यूज करना है। toCar में यहाँ पे आपको डेट वाला कॉलम देना है और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग स्पेसिफाई करना है। So this is important conclusion जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमेशा याद रखें कि भाई सेलेक्ट करते समय तो toCar यूज करना है, लेकिन इंसर्ट करते समय toDate यूज करनी है। यहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे थे तो toDate से टाइम स्टोर करेंगे, और रिट्रीव करते समय आप toCar यूज करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ सिंपल जो भी डेट के कॉलम है वो सिर्फ डेट के लिए बने हैं और वो सिर्फ डेट स्टोर करेंगे। लेकिन टाइम को अगर ऐड करना है तो इट शुड बी ट्रीटेड लाइक ए स्ट्रिंग। सो ड्यूरिंग इंसर्ट दिस स्ट्रिंग नीड टू बी कन्वर्टेड टू डेट, सो वी हैव टू यूज toDate।
During retrieval, this date need to be converted to string. So again, you have to use toChar. Okay, can you tell me what will be the output in this case? अगर मैं ये query लिखूं तो क्या होगा? सो कैरेक्टर फॉर्म में कर देगा टाइम को। डेट बताएगा या नहीं बताएगा? नहीं बताएगा सर। आई डोंट थिंक नहीं बताएगा। हाँ, तो इस केस में डेट नहीं आएगी, इस केस में सिर्फ टाइम आएगा। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट यू कैन राइट द क्वेरी ओनली टू डिस्प्ले टाइम। तो अगर आप चाहते हो कि इसको सिर्फ टाइम डिस्प्ले करना है तो यू कैन राइट हियर टाइम एज टाइम। तो ये सिर्फ आपको उसका टाइम बताएगा। तो टाइम ऑफ बर्थ सिर्फ आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज द केस, और आप उस तरह से ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सर जब हम toChar फंक्शन यूज करेंगे तो DOB के बाद फॉर्मेट आएगा ना डेट का? हाँ, डेट का फॉर्मेट आएगा, लेकिन मैंने डेट का फॉर्मेट दिया नहीं था तो इसलिए डेट आई नहीं ना। तो जो फॉर्मेट में लिखोगे बस वही आएगा। तो फॉर्मेट में मैंने टाइम दिया है तो टाइम आया, या मैं सिर्फ अगर यही देता हूँ तो सिर्फ वो आर की इंफॉर्मेशन देगा और कुछ नहीं देगा। सो डेट ऑफ बर्थ में से वही चीज निकलेगी जो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई की है। तो यहाँ पे सिर्फ आर्स सर निकलते हैं। नीचे सर स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना आपने यहाँ पे रिट्राइवल में? हाँ, तो ये स्ट्रिंग हो गया ना, HH24, ये स्ट्रिंग बन गया ना, ये स्ट्रिंग हो गया। ये डेट ऑफ बर्थ हुआ और अच्छा। ये इसको स्ट्रिंग मान रहा हूँ ना, कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया एक तरह का। कंप्यूटर के लिए तो ठीक ये है। स्ट्रिंग है ना, आप जहाँ जो मर्जी लिख लो वो एज ए स्ट्रिंग ही काम कर रहा है ना, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो दिस हाँ इज जस्ट एक्टिंग लाइक ए स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन, और वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है एक्चुअली। अगर टेक्निकली एग्जैक्ट वर्ड यूज करूँ तो इट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी आप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। यस, ओके। तो मेरा अब अगर इसे हमने 12 मेरा अब अगला आपसे क्वेश्चन है कि अगर मुझे कोई एग्जांपल बताइए जहां आपको डेट के साथ टाइम भी स्टोर करना जरूरी होता हो। अब जैसे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है उसमें तो आप कह सकते हो कि टाइम स्टोर करने की क्या जरूरत है, हम इसके बिना भी चला सकते हैं। बट क्या कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन डिटेल्स। हाँ जी, कुंडली में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे किसी भी बिल्डिंग के। एंट्री हो रही है। हाँ, मेन गेट से एंट्री हो रही है। मेन गेट पे बैंक अकाउंट से जब पैसे निकालते हैं। हाँ सर, जब कि वो बर्थ सर्टिफिकेट में जब एंट्री होती है उसकी। हाँ, तो अगर आपको मैच मेकिंग करनी है, कुंडली बनानी है स्टूडेंट्स की, तो फिर तो टाइम भी स्टोर करना पड़ेगा। और यस ऑफ कोर्स लेट एंट्री के लिए आपको टाइम ज़रूरी है। और अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करूँ तो अगर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनाना है मुझे, तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में आपको ट्रेन के साथ उसका दोनों कि ट्रेन किस डेट को चलेगी और साथ में ट्रेन का टाइम क्या है, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उस केस में आपको उसका जो डिपार्चर इंफॉर्मेशन है और जो अराइवल इंफॉर्मेशन है उसमें दोनों चीज़ें बतानी होती हैं कि भाई ये ट्रेन इस टाइम पे डिपार्ट होगी और इस टाइम पे आएगी। तो उसमें डेट के साथ मुझे टाइम भी स्टोर करना है। सो यस, देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस वेयर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। अब एक काम करते हैं, एक टेबल है लेट्स सपोज ट्रेन नंबर, उसमें मैं सर एक क्वेरी थी। यस प्लीज। सर यहाँ जो 24 आवर्स फॉर्मेट में जब सिस्टम डेट का टाइम प्रिंट हो रहा है तो वो ग्रीनविच मीन टाइम में चल रहा है क्या? यस यस, तो ये तो सर मतलब ये डेट मॉडिफाई भी हो सकती है, मतलब जैसे आप अभी डाउट आया था कि ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से डिस्प्ले होता है, मतलब ये मॉडिफाई भी हो सकता है कि हम 5 आवर्स 30 मिनट्स ऐड कर दें उस पर्टिकुलर डेट उस पर्टिकुलर टाइम पे या डेट पे। हाँ, वो भी ऐड कर ही सकते हैं। टाइम ऐड करना चाहते हैं, चलो उस पे भी मैं आता हूँ। वो ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, ये करते हैं पहले। लेट्स डू वन थिंग, फिर आगे चलते हैं। सेलेक्ट डेट फ्रॉम ड्यूल, इससे मुझे मिलती है डेट, ठीक। और अगर मुझे चाहिए टाइम तो मैं क्या करूँगा, toChar, और यहाँ लिख देता हूँ D
YYYR24 MISS। ये जो क्वेश्चन है ये चॉकलेट वाला है, जिसका ठीक उसको चॉकलेट मिलेगा। कैसे मिलेगा पता नहीं, पर आपको चॉकलेट मिलना चाहिए अगर आप आंसर देते हैं तो। ओके, पहले ये चलाएं। ये आ गया टाइम, डेट और टाइम। गुड। तो ये मुझे टाइम और डेट की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि 9 मार्च को इस समय 16 बजकर इतना टाइम है। हमने अब टाइम में 30 मिनट ऐड करने हैं। सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि आप ऐसी क्वेरी लिखो जिससे ये टाइम 16 बजकर 41 मिनट हो जाए। ऐड 30 मिनट्स इनटू दिस, इस टाइम में। इज इट पॉसिबल टू ऐड 30 मिनट्स इनटू द टाइम? MI plus 30। हाँ जी, MI के आगे +30 लिख दो। हाँ सर, MI के आगे प्लस MI के आगे plus 30। MI के आगे +30। मैं लिख सर रहा MI हूँ, के आगे प्लस MI के आगे प्लस। मैं लिख रहा हूँ पर एरर आने वाला है, ये नहीं चलने वाला। सो ये तो डेट के साथ आगे नहीं करेंगे तो ये वाला तो नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ प्ले करने से कोई नहीं होने वाला। ये स्ट्रिंग है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सो यू कांट चेंज एनीथिंग हियर। सर उसे डेट में डेट के कन्वर्ट आगे कर, करेंगे ना। उसे हाँ। डेट में कन्वर्ट करके फिर प्लस करके अगर फिर टाइम में कन्वर्ट करें तो। एक मिनट, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये क्वेरी आती है, इसके आउटपुट पहले देखने। ओके, अब मुझे आंसर देना। अगर मुझे यहाँ से 10 मार्च डिस्प्ले करना हो तो मुझे क्या कर, टाइम यही रहे लेकिन 9 मार्च की बजाय 10 मार्च आए, तो क्या क्वेरी लिखोगे? सिस डेट प्लस 1। ओके, सिस डेट प्लस 1 इसको लिखता हूँ। तो ये हो गया 10 मार्च। आने दो पहले 10 मार्च। तो ये 10 मार्च आ गया, उसने एक दिन ऐड कर दिया। अब सोचिए, क्वेरी ये लिखनी थी कि वो यहाँ पे 30 मिनट ऐड करे। +1 ने एक दिन पूरा ऐड किया है। मैंने आपको बोला था 30 मिनट ऐड करने के लिए, तो क्या करोगे? सर 1 को डिवाइड कर देंगे सर, तो जैसे सर उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब डेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। कितना डिवाइड करूं? So 30 divided by the minutes in a day. 1 divided by 48। अच्छा, 30 डिवाइड बाय मिनट्स इन अ डे उतना ऐड करेंगे सर। क्या करूं बताओ? 1 divided by 48। So 48। 1 डिवाइडेड बाय 48। ओके 1 डिवाइडेड बाय 40। चलो 48। ठीक 1 डिवाइडेड बाय 24 करूंगा तो क्या आएगा? कितनी देर ऐड करेगा? 1 घंटे बाद। 1 घंटे एक बाद। घंटा। पहले 1 1 घंटा। 1 घंटे का आएगा सर। पहले 1 घंटा ऐड करते हैं। सो 9 मार्च, पहले 14 था, 15 हो गया, 1 घंटा ऐड हो गया। अब आपको था 40 मिनट्स ऐड करने, 30 मिनट्स ऐड करने, तो यू कैन दिस। ठीक है जी। सो यस, यू कैन प्ले विद दिस। तो यहाँ पे जो 1 था वो 24 आवर ऐड कर रहा है, और आप यहाँ से डिवाइड बाय 24 करके 1 आवर ऐड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 48 करके 30 मिनट्स ऐड कर सकते हैं। यस, यहाँ पे हम 30 मिनट्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने 30 मिनट इसमें ऐड कर दिए। गुड, गॉट इट? यस सर। ओके, अब मैं वापस आता हूँ इसके ऊपर कि एक टेबल था जिसमें ट्रेन नंबर है, उसका डिपार्चर है और उसका अराइवल है। तो मुझे अब ये टेबल क्रिएट करना है और उसमें मुझे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो लेट्स क्रिएट दिस टेबल फर्स्ट। क्रिएट टेबल, ट्रेन नंबर टाइप बना लेता हूँ, डिपार्चर डेट टाइप हुआ, अराइवल भी डेट टाइप हुआ, और इसको हमने क्रिएट कर दिया। तो इसके बाद क्या करना है, इसमें हमें बाद में जो है तो टेबल क्रिएट हुआ ट्रेन नाम का, और उसमें ट्रेन नंबर, डिपार्चर और अराइवल है। Now let us insert a record in this. Insert into train values
अब बताइए मुझे कैसे इंसर्ट करूंगा, मुझे डेट और टाइम दोनों स्टोर करनी है। तो डिपार्चर है, आज कितनी डेट है, 9 मार्च, 9 मार्च 2021। टाइम कितना था, मान लो 18 कर देता हूँ। ये डिपार्चर हो गया, ये इसका अराइवल बना देते हैं। सर 2 डेट लगेगा। 1 पे 2 डेट। फॉर्मेट नहीं, सर डेट के बाद फॉर्मेट। To date this, फिर this, comma to date this, comma this. Not a valid month. सर फॉर्मेट फॉर्मेट सर लिख देते हैं। सर DDMONYYY आएगा। हाँ जी। मैंने फॉर्मेट तो लिखा ही नहीं, सारा लिखना पड़ेगा ना। DDMMYY फिर R24 minutes seconds, ठीक है। अब one row inserted. Select star from train. So this is we have inserted. ओके अब मैं चाहता हूं कि मुझे उस ट्रेन का डाटा चाहिए जो अगले 1 घंटे में जाने वाली है। ट्रेन विच इज गोइंग टू डिपार्ट इन नेक्स्ट 1 आवर। क्या निकाल सकते हो? Trains सर which उसमें are 1/24 का depart in next 1 hour. क्या लिखेंगे where? So take your time and use chat box to display the name detail of train depart in next 1 hour. अगले 1 घंटे में जो जाने वाली है। तो कैसे निकालोगे? जो लिखेगा वो चैट बॉक्स के ऊपर मुझे सोल्यूशन बता सकता है। So I'm getting some solution like this, where arrival is equal to sysdate plus this. ये तो एग्जैक्ट हो गया। मुझे है बिटवीन 1 आवर, मतलब 10 मिनट वाली भी आनी चाहिए बीच में। अगर कोई 5 मिनट में आ रही है वो भी आनी चाहिए। लेस देन और इक्वल टू sysdate plus 1/24. Okay, where departs and departure time date. You can also someone is writing like this. तो ये क्या कर रहा है, ये 2 डेट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से बीच में नंबर ऑफ डेज निकाल रहा है। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ कोर्स वो 1 से कम आएंगे, तो वो लेस देन 24 एक्चुअली इट रेफर टू 30 मिनट्स। तो उस वे से लॉजिक लगा रहा है कि sysdate माइनस डिपार्चर में 30 मिनट से कम का टाइम हो। तो ये भी क्वेरी चल सकती है, ये भी चल जाएगी।
Yeah, so I'm also getting this where departure between sysdate and this. So yes, you are giving me correct answers. So इस तरह से multiple solutions हैं and you can frame the queries. तो जो हम अगली असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट नंबर 3 है, वो डेट्स के ऊपर है और उसमें इस तरह के आपको क्वेश्चंस हैं कि आपको डेट निकालनी है, टाइम निकालना है, एक ट्रेन का टेबल है और उसमें इस तरह की क्वेरीज पूछी हैं कि आपको ट्रेन डिस्प्ले करनी है जो अगले 30 मिनट्स में आने वाली है या जो अगले 2 घंटे में जाने वाली है। और आप समझ सकते हैं कि ये क्वेरीज जो है ये बिल्कुल डायनेमिक है और जब आप रेलवे इंक्वायरी सिस्टम यूज करते हैं, जब आप चेक करते हैं कि भाई सरहंद से कितने बजे ट्रेन मिलेगी या राजपुरा या अम्बाला से कितने बजे ट्रेन मिलेगी, अगले 1 घंटे में कौन सी आने वाली है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कि उसके पीछे की उन्होंने क्वेरी कैसे लिखी होगी और वो डायनेमिक है, वो ट्रेन्स उसमें ऐड होती रहेंगी, रिमूव होती रहेंगी एंड दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल क्वेरीज। सो इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है डेट और टाइम के ऊपर काम करने का। और जस्ट मैं आपको कुछ और फॉर्मेट्स बता देता हूँ जाते जाते। तो इस तरह से हम टाइम फॉर्मेट में AM और PM भी बता सकते हैं। ये आपको डिस्प्ले करेगा कि उस समय AM है या PM है। आप टाइम फॉर्मेट में ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं DD ऑफ मंथ, तो वो बताएगा कि 12th ऑफ अक्टूबर की बात हो रही है। और अगर आप DD के साथ SPS लिख दे देंगे तो वो आपको स्पेल आउट कर देगा, जैसे डेट अगर 9th है तो वो 9th पूरा टेक्स्ट में लिख देगा। इसको मैं करके दिखा देता हूँ। So all these are the formats: year, MM, month, MON, DY, 3-letter abbreviation of day, TD। ये सारे एक बार ट्राई कर लेते हैं sys date के साथ, so that you have idea about this. Select to char। सर sysdate माइनस डिपार्चर से क्या मिल रहा है? sysdate माइनस डिपार्चर से वो क्या करेगा, सिस्टम डेट में से डिपार्चर डेट को सब्ट्रैक्ट करेगा और जब 2 डेट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। लेकिन अगर सेम डे है तो वो नंबर ऑफ डेज प्रिसीजन जो है वो चलती है और इस तरह से वो आपको एग्जैक्टली उसकी जो टाइम फ्रेम है वो बता देगा और 30 मिनट्स तक ये क्वेरी चल जाएगी। मैं अभी इसको एज में निकाल के दिखाऊंगा, यू विल गेट एन आइडिया। सर ये अगर माइनस में नेगेटिव चला गया तो? हाँ, you can modify your query accordingly, yes. Okay. So this I want to show you कि ये भी कीवर्ड है DD SPH से वो 9th, जैसे आज 9 डेट है तो 9th डिस्प्ले करेगा। डे कीवर्ड भी है तो डे से आपको डे बता देगा कि आज ट्यूसडे है और ईयर अगर ऐसे लिखेंगे तो वो आपको स्पेल आउट कर देगा 2021। तो दीज आर ऑल्सो द कीवर्ड। अदरवाइज इसमें हम ये यूज कर रहे थे ना, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डे के लिए हम आगे ये लिख रहे थे। तो ये all these are the formats you can try. So YY will give you 2021, DD will give you 09, day will give you this Tuesday, DD SPH will give you 9th. So all these are listed here, so you can try all these things. DY भी है 3 week abbreviation of this, so DY भी लिख लेते हैं। DY से TUE आ जाएगा, ये TUE, तो ये एब्रीवेशन ऑफ डे आ गया। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, अगर लोअर में लिखोगे तो लोअर में आएगा, अपर में लिखोगे तो अपर में आएगा। सो मैं यहाँ अपर में लिखता हूँ तो ये अपर में आएगा, ये अपर में आएगा। तो आज के लिए इतना ही है और अगली क्लास में हम जो कुछ और SQL की और क्वेरीज हैं और जो और कंसेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। So if you have any doubts based on today's discussion, you can ask me any question.
सो लास्ट में हमें dy को कैपिटलाइज एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर कैपिटल में लिखोगे तो ट्यूसडे कैपिटल में आएगा, अगर लोअर में लिखोगे तो वो लोअर में आएगा। तो मतलब इनका केस इंपॉर्टेंट है, जैसे लिखोगे वैसे। अगर डे लोअर में लिखा है तो जो ट्यूसडे है वो लोअर में आ रहा है। अगर मैं डे अपर में लिखूंगा तो ये ट्यूसडे भी अपर केस में आएगा। DDSPF अपर में लिखूंगा तो ये 9th अपर में आएगा। तो इस तरह से। ओके सर जैसे आपने शुरुआत में डे बताया था, सॉरी एज बताया था, तो फिर एज का वो डेसिमल्स में आ रहा था क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा था टाइम। तो अगर हमें डेसिमल्स हटाने तो क्या करेंगे? एक मिनट वो करता हूँ मैं दोबारा। सेलेक्ट था sysdate माइनस डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम तो ये आ रहा है ना, ये नंबर ऑफ डेज है और ये उसके अगला डेज का 40, मतलब ये बता रहा है कि ये जो 97th डे है इसका 43% पास हो चुका है। तो ये एक तरह से आवर्स की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो उस वे से हम इसको ट्यून कर सकते हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट 30 मिनट्स ऑन दैट। तो अगर मान लो किसी का अभी का डेट ऑफ बर्थ आज का ही है और वो उसका मैंने टाइम जस्ट 30 मिनट पहले दिया है, तो ये डे तो 0 आएगा, लेकिन ये यहाँ पे टाइम जो है ये इंफॉर्मेशन टाइम की आ जाएगी कि वो कितने मिनट्स का हो चुका है। तो उस वे से आप इस क्वेरी को फ्रेम कर सकते हैं, बट वो डे का परसेंटेज देगा, तो उस वे से आपको देखना होगा वैल्यू क्या आएगी। बट ऑफ कोर्स लॉजिक कैन बी बिल्ट ऑन दिस। सर मैं कह रहा हूँ अगर हमें जैसे एज चाहिए तो फिर हम बाय 365 कर देते हैं। हाँ, तो फिर अगर उसमें डेसिमल्स आते हैं ना, तो अगर हम बिल्कुल। उसे डेसिमल्स को हटाने तब क्या करेंगे? अच्छा, डेसिमल हटाना चाहते हैं, तुम्हारा ये क्वेश्चन है? यस सर, यस सर, यस सर। एक मिनट। तो जैसे ये है तो हमारे पास फिर फंक्शन है और राउंड फंक्शन है। जो वैल्यूज है उसको मैं राउंड कर सकता हूँ, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा और ये डेसिमल खत्म कर देगा। तो ये राउंड हो गया। इसको ट्रिम कर सकता हूँ तो इसमें राउंडिंग फंक्शन लग जाएगा, तो यस राउंड कर सकते हैं। और अगर राउंड नहीं करना तो एक सिंपल ट्रिम फंक्शन है जो राउंड नहीं करेगा, ट्रिम कर देगा, मतलब पीछे लेके जाएगा। तो इस तरह के डेट फंक्शंस, सिंगल रो मल्टी रो फंक्शंस हैं, वो अगले सेशन में ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे क्विकली। ओके सर। सर ट्रिम फंक्शन सर जो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन था, इसमें जो 1 आवर का टाइम था वो वाला दोबारा बता दो। क्या मैं सुना नहीं पा रहा, आपको थोड़ा ऊंचा बोलिए। सर जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था इसमें हमने वेयर स्टेटमेंट्स लिखी थी, तो दोबारा बता दो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसमें पहले मैं इसको राउंड कर रहा था ना, ये जो पॉइंट्स में आ रहे थे इससे पहले। सर ये ट्रेन वाला क्वेश्चन जो था ना उसमें हमने वेयर स्टेटमेंट्स लिखी थी, ये वाली तीन स्टेटमेंट्स दोबारा बता दो। ये वाली? हाँ जी सर। ये क्या करेगा एक्चुअली, ये जो सिस्टम डेट है, सिस्टम डेट आज की डेट हो गई, ये डिपार्चर डेट हो गई, तो सिस्टम डेट में से डिपार्चर डेट को सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर ये दोनों सेम डे हुए, मतलब डिपार्चर आज के दिन का ही हुआ, तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नंबर ऑफ डेज तो 0 आएंगे, तो लेकिन जो वैल्यूज है वो पॉइंट्स में कुछ आएगी। तो वो पॉइंट्स में कितनी वैल्यू आएगी, वो डे का एक तरह का टाइम बता देगा आपको कि भाई ये अगर अगले 30 मिनट्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डेट के मैं 48th पोर्शन की बात कर रहा हूँ या डे के 24th पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं इस वैल्यू के साथ, और इसके साथ भी आप निकाल सकते हैं कि जो अगले 30 घंटे में वैल्यू आने वाली है। बट ऑफ कोर्स ये वैल्यू नेगेटिव भी जा सकती है, तो उस तरह से हमें इसको टेक केयर करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज दिस कि डेज 0 हो जाएंगे और जो बाकी पॉइंट्स में वैल्यू मिलेगी वो आपको आर की इंफॉर्मेशन बतानी शुरू कर देगा। ओके सर एएम पीएम के फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? उसका एएम ही है, बस उसमें सिर्फ एएम ही लिखना होता है। मैं करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एएम।
तो ये आपको बता देगा कि इस समय AM है या PM है। तो ये PM है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर लेकर, लेकिन AM ही है, PM नहीं चलेगा शायद। So yes, you can use AM or PM, but it will tell you about कि उस समय क्या है। तो जो भी उस समय चल रहा होगा वो डिस्प्ले कर देगा। सर जब आपने 29 लाइन एग्जीक्यूट की थी बिना राउंड लिखे तो 1497 बहुत बड़ी वैल्यू आई थी, जब राउंड लिखा तो 40 में कन्वर्ट हो गई थी सर वो। यस, तो वो राउंड ऑफ हो गया ना, वो राउंड ऑफ डेसिमल हटा। नहीं, वो पॉइंट, एक मिनट, मतलब तुम्हारे कहने मतलब राउंड नहीं हुई वो वैल्यू। सो ये देखो ना, ये सारी वैल्यू 0.26 है, तो उससे कम है ना, तो राउंड में 40 में ही जाएगा ना। अगर 0.56 होता तो राउंड करने पे 41 बनता, तो इसमें 40 ही बनना था क्योंकि 40.26 है। तो राउंड एंड ट्रिम विल गिव यू सेम रिजल्ट, बट इफ इट इज 40.56 तो राउंड विल गिव यू 41 बट ट्रिम विल गिव यू 40। ओके सर, ठीक है। सर फुल ईयर नेम नहीं डिस्प्ले हो सकता? हाँ जी, फुल ईयर नेम। हाँ, ईयर से फुल जैसे ईयर उसमें नेम, सिर्फ 21 था ना। ईयर से पूरा आएगा ना 2021, ईयर कीवर्ड से फुल आएगा। So you can experiment with on your own, of course. आप में कई सारी curiosity होगी, so now the floor is open to you, so you can open live SQL and experiment all those things. और मैं आपसे थर्ड असाइनमेंट शेयर करूंगा, उसकी इसी डिस्कशन के ऊपर होगा, और प्लीज फॉलो दैट। सर 24th लाइन है वो आपको हमेशा मतलब हम लोग को 1 आवर से लेस देन की जो भी क्वेरीज हैं वो सारी बताएगा, 1 आवर से लेस देन। हाँ, इससे सारे 1 आवर लेस आ जाएंगे। अदरवाइज यू कैन राइट दिस क्वेरी आल्सो, ये भी हो सकती है। तो देयर आर मल्टीपल वेज, जो भी आपके लॉजिक में जच रहा है आप उसके अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हैं। मतलब कंसेप्चुअली आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपने करना कैसे है, देन अकॉर्डिंगली यू कैन फ्रेम योर लॉजिक once the concept is clear to you. ठीक है जी। So we have total how many students? 85. चलो, thank you, thanks for joining.